Good morning, children. Welcome to our online classes. And in today's class, I will teach you science. I know it is a little bit a new subject for you all, but I hope you all understand this. So, let's start with our first chapter. Students, our first unit is food. In this, we will study about sources of food. We eat different kinds of food at different times. We eat sandwiches, bread, butter, or paratha with milk in our breakfast. We eat dal, sabji, salad, chapati, and rice in lunch. All these are different kinds of food that we take at different time. हम हर टाइम एक अलग अलग फूड लेते हैं. Okay, so let's do the activity also that you have to do yourself. Next one is need of food. All living organisms need energy to grow and perform various activities. Living organisms get energy from the food they eat. Food is the fuel for our body because it provides energy. We use the stored energy of our body to do work and thus we feel tired and hungry. We eat food when we are hungry. Students, now I will give you one example. What happened normally when you all play continuously? जब आप लगातार खेलते रहते हैं तो क्या होता है? आप थक जाते हैं. You feel tired. Then what happened? That time you need something that gives your body energy again. उस टाइम आपको कुछ ऐसा चाहिए होता है जिससे आपकी बॉडी जो है अपनी एनर्जी को रीगेन कर सके. और वो एनर्जी आपकी बॉडी को कहाँ से मिलता है? वो फूड से मिलता है. वाई? बिकॉज फूड कंटेन्स ऑल दी डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. मे बी यू ऑल नो दैट कि अगर मशीन्स को जो हम व्हीकल्स यूज़ करते हैं सबको फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है. विदाउट फ्यूल कोई वर्क नहीं करता है. सेम एज इट इज़ हमारी बॉडी को भी फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है. गॉट इट और नॉट? दिस फ्यूल मीन्स वॉट? एनर्जी. और वो हमें कहाँ से मिलता है? फूड से मिलता है. सो हियर आर दी सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ food. It is very important. If I give you question, what are the functions of food? That time you have to write down the given points. It gives energy to work and play. ये हमारी बॉडी को एनर्जी देता है ताकि हम अपने दूसरे इम्पॉर्टेंट काम कर सकें और खेल सकें. इट गिव्स न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी. अगर हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो हमारी बॉडी का ग्रोथ नहीं होगा. ओके. It gives nutrients for the maintenance and repair of the body cells and tissues. हमारी बॉडी का जो फंक्शनिंग यूनिट होता है सेल्स एंड टिश्यू, इनकी मेंटेनेंस के लिए, इनके रिपेयर के लिए न्यूट्रिशंस का प्रोवाइड करवाता है फूड. इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डिजीजेज एंड कीप अस फिट एंड हेल्दी. ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. जो भी फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है उससे हमारी बॉडी के अंदर जो है इम्यूनिटी पावर इंक्रीज़ हो जाती है ताकि जो आउटर बैक्टीरियाज़ हैं उससे फाइट कर सके और हमारे बॉडी को डिजीज़ से बचा सके. गॉट इट? आई होप टिल हियर यू ऑल अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वन, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड. नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, so all of you please focus here only. Animals का classification on the basis of their food. What does it mean? It means in this para we will study about the different kinds of animals on the basis of their food habits. कुछ animals ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ plants पे depend होते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जो कि flesh of अदर एनिमल दैट मीन्स मीट वगैरह, नॉन वेज वगैरह खाते हैं जिसको हम हिंदी में कहते हैं मांसाहारी. और जो प्लांट्स वगैरह खाते हैं वेजिटेरियन, उनको हम कहते हैं शाकाहारी. और कुछ ऐसे होते हैं एनिमल्स जो कि वेज भी खाते हैं और नॉन वेज भी खाते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके.
So we will do this activity later. First of all, I want that I will explain you. तो ये एक्टिविटी टेबल 1.2 करने में आपको ईजी रहेगा. ओके. We observe that different animals have different food habit. Okay. On the basis of their food habits, we classify animals into following 3 categories. एनिमल्स की फूड हैबिट के बेस पर एनिमल्स को 3 पार्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है. कितने पार्ट में? 3 पार्ट में. गॉट इट. फर्स्ट वन इज हर्बीवोरस एनिमल, सेकेंड वन इज कार्निवोरस एनिमल, and the third one is omnivorous animals. Now I will explain these 3 categories of animals. Okay. First one is the herbivorous animals. Now what is the herb means what? herb का मतलब ही होता है कि पेड़ पौधे. Animal that eat only plants and plant products are called herbivorous animals. Got it? वो एनिमल जो कि प्लांट या प्लांट से मिलने वाली वस्तुएं ही खाते हैं उनको हम कहते हैं herbivorous animals. Examples are cows, goats, rabbits, sheep and deer. क्या आपने इन एनिमल्स को कभी भी फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स यानी मीट नॉनवेज वगैरह खाते हुए देखा है? नहीं. ये एनिमल्स हमेशा ही प्लांट्स या फिर प्लांट्स प्रोडक्ट ही खाते हैं. काउ एंड गॉट आर दी कॉमन एग्जाम्पल्स. ओके. गोट्स, आई थिंक यू ऑल नो अबाउट दैट, एंड काउज ऑल्सो. नेक्स्ट वन, सेकेंड वन इज कार्निवोरस एनिमल्स. एनिमल्स दैट ईट ओनली द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल्स. जो कि हमेशा दूसरे एनिमल्स का, नॉर्मली अगर वो नॉनवेज खाते हैं तो वो दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को ही खाते होंगे ना. ओके. एंड कॉमन एग्जाम्पल इज टाइगर्स, लायंस, ईगल्स एंड वोल्व्स. गॉट इट. थर्ड वन, एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट प्रोडक्ट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड omnivorous animals. Got it? वो एनिमल्स जो कि वेज और नॉन वेज, फॉर एग्जाम्पल प्लांट प्रोडक्ट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दोनों ही खाते हैं, उनको ओमनीवोरस एनिमल्स कहते हैं. एंड स्टूडेंट, हियर वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, हम ह्यूमन बींग्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं. बिकॉज कई ऐसे होते हैं जो कि वेजिटेरियन होते हैं, कई ऐसे होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं. और नॉर्मली जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो वेज भी खाते हैं. ऐसा तो नहीं अगर आप नॉन वेज खाते हो तो आपके घर में कंटिन्यूसली एग और मीट, मटन यही बनता है. नहीं, कभी तो सब्जी भी बनती है. दैट मीन्स व्हाट? हम किस कैटेगरी में आते हैं? ओमनीवोरस कैटेगरी में ही आते हैं. So what are the examples? Examples are cockroach, crows, rats, bears, human beings, etc. Got it? I hope you all understand these 3 kinds of animals categorized on the basis of their food habits. Do you know some animals and birds eat the flesh of dead animals? Such animals and birds are called scavengers. Jackals, hyenas and vultures are examples of scavengers. Some living organisms like fungi and bacteria feed on dead plants and animals and decompose them. These organisms are called decomposers. कुछ living organisms जैसे कि फंगी और बैक्टीरिया, ये अपना खाना दूसरे प्लांट या फिर एनिमल्स, लेकिन ये प्लांट और एनिमल्स कैसे होते हैं? डेड होते हैं. ठीक है, उनको डिकम्पोज करके अपना खाना बनाते हैं, इसलिए उनको कहते हैं डिकम्पोजर्स. गॉट इट? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. एंड दिस MCQ multiple choice questions you have to do yourself. Our next topic is
Sources of food. Have you ever thought where do the ingredients of various dishes come from? What is the sources of rice? Plants, of course. Where does milk come from? From animals. Generally, we get food from two main sources, plants and animals. देखिए, हम खाना तो बनाते हैं, लेकिन ये जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करते हैं, ये इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू कुक फ्राइड राइस, एनी डिश, एनीथिंग, दैट टाइम वी नीड इंग्रेडिएंट्स. इनके लिए हमें इंग्रेडिएंट चाहिए. वी नीड राइस, स्पाइसेस, वेजिटेबल्स. सो फ्रॉम वेयर डिड वी गेट दिस ऑल दिस इंग्रेडिएंट? कहाँ से मिलता है हमें ये सारी चीज़ें? ये चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं. सेकेंड वन, इफ़ यू वॉन्ट टू ड्रिंक मिल्क and we want to eat paneer, cheese. Now the question is, from where did we get these things? We get this thing from animals. So we get food from two main sources. हमें food कहाँ से मिलता है? हमारे दो main source कौन कौन से हैं? Plants and animals. Got it? Now first let's discuss about the plants as a source food. The green plants prepare their own food. Thus, green plants are called producers. They prepare more food than they actually require. They store the extra food in their different body part. The parts of the plant that can be eaten are called edible parts. Normally, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं. प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए हम प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहते हैं. गॉट इट? एंड दे स्टोर द एक्स्ट्रा फूड इन देयर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. वो फूड्स को अपने बॉडी पार्ट्स में रखते हैं स्टोर करके. द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कैन बी ईटन आर कॉल्ड एडिबल पार्ट्स. प्लांट के वो पार्ट जो कि हम अपने फूड में यूज़ करते हैं, that is known as edible parts. Got it? The stored food material of plants are used by us as food. We get cereals, pulses, vegetables, fruits, spices, oil, sugar and beverage from plants. Got it? All these are the main food ingredients, or we can say edible parts of the plant. Okay, so students, for today class only this much you have to do. I will give you assignment also, so try to complete it today only and submit it. आपको आज यहीं तक ही रीड करना है, बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ओके, चैप्टर को 2 और 3 टाइम्स केयरफुली रीड कीजिए, जो PDF आपको अवेलेबल कराया गया है. ओके, थैंक यू सो मच. स्टे होम, स्टे सेफ.